हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5, रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में धार्मिक प्रवृत्तियाँ। इस चैप्टर में 6 रिलीजन को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है जैनिज़्म, सेकंड है बुद्धिज़्म, थर्ड है जुडाइज़्म, फोर्थ है क्रिश्चियनिटी, फिफ्थ है इस्लाम और सिक्स्थ है ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म। तो स्टार्ट करते हैं। Towards the end of the Vedic period, the minute details of yajna rites acquired undue importance. Only the priestly class had the knowledge of those details. Others no longer had the freedom to gain that knowledge. The Varna system restrictions became very hard in the course of time. A person's social position was decided by the Varna into which he was born, rather than by his achievements. That is why, from the Upanishad period, we see that attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only to yajna rites. However, the thought in Upanishad focus on the existence and nature of the soul. It was difficult for ordinary people to understand it. This gave rise to different sects that emphasize the worship of particular deities. For example, the Shaiva sect of Shiva worshipper and the Vaishnava sect, the worshipper of Vishnu. Different Puranas were written with reference to these deities. वैदिक काल के अंत तक यज्ञ संस्कार के बारीक और महीन सूचना के विवरण ने अनुचित महत्व हासिल कर लिया। केवल पुजारी वर्ग को उन विवरणों का ज्ञान था, दूसरों को अब उस ज्ञान को हासिल करने की स्वतंत्रता नहीं थी। वर्णा सिस्टम समय के साथ बहुत कठिन हो गए। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उस वर्ण द्वारा तय की गई थी जिसमें वो पैदा हुआ था, बजाय अपनी उपलब्धियों के। इसलिए उपनिषद काल से हम देखते हैं कि धार्मिक विचारों को व्यापक दायरे देने और केवल यज्ञ संस्कारों तक सीमित न रखने का प्रयास किए गए थे। हालांकि उपनिषदों में विचार आत्मा की अस्तित्व और प्रकृति पर केंद्रित है। आम लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल था। इसने विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया, जिसने विशेष देवताओं की पूजा पर जोर दिया। उदाहरण के लिए शिव उपासकों के शैवा संप्रदाय और विष्णु के उपासकों के वैष्णव संप्रदाय। इन देवताओं के संदर्भ में विभिन्न पुराण लिखे गए थे। Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thoughts in such a way that the common man would understand it easily. Many people realized that every person is free to find ways of his own upliftment. This led to the establishment of new religions. These religions emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in an individual upliftment. The work of Vardhaman Mahavir and Gautama Buddha is of special importance among the proponents of new thought. छठी शताब्दी बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा के आसपास कुछ प्रवृत्तियों ने धार्मिक विचारों को इस तरह से व्यक्त करने का प्रयास किया कि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। कई लोगों ने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के अपलिफ्टमेंट यानी तरक्की के तरीके खोजने के लिए स्वतंत्र है। इससे नए धर्मों की स्थापना हुई। इन धर्मों ने सशक्त रूप से यानी जोर देकर कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव का व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट में तरक्की में कोई स्थान नहीं है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्यों के नए विचारों के समर्थकों के बीच विशेष महत्व है। जैनिज्म Jainism is one of the ancient religions in India. This religion gives importance to the principle of non-violence. According to the Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as a Tirthankar. There have been 24 Tirthankars in all. Vardhaman Mahavir is the 24th Tirthankar in the Jain religious tradition. जैन धर्म भारत में प्राचीन धर्मों में से एक है। यह धर्म अहिंसा के सिद्धांत को महत्व देता है। जैन परंपरा के अनुसार धार्मिक ज्ञान प्रकट करने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। वर्धमान महावीर जैन धार्मिक परंपरा में 24वें तीर्थंकर है। Vardhaman Mahavir, 599 BCE to 527 BCE. There was Mahajanapada, known as Vriji in what is known as the state of Bihar today. Its capital was Vaishali. Vardhaman Mahavir was born in Kundagram, a part of Vaishali. His father's name was Siddharth and mother Trishala. Vardhaman Mahavir
left his home and all comforts for the attainment of knowledge. He attained enlightenment after 12.5 years of rigorous tapa. This knowledge was pure or keval. Therefore, he is also known as Kevali. He was called Jina or conqueror because the joy derived from physical comforts and the discomfort felt due to undesired thing had no impact whatsoever on him. The term Jain derives from the word Jina. एक महाजनपद था जिसे आज बिहार राज्य के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली थी। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो वैशाली जगह का हिस्सा था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्होंने 12.5 साल का कठोर तप के बाद आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान शुद्ध या केवल था, इसलिए उन्हें केवली के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जीना या विजेता कहा जाता था क्योंकि भौतिक सुखों से प्राप्त आनंद और अवांछित चीज़ों के कारण असुविधा महसूस होना, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जैन शब्द की उत्पत्ति जिना शब्द से हुई है। Vardhaman is said to be Mahavir because he had the resilience, the courage to conquer all passions. After the attainment of knowledge, he preached for about 30 years to explain the essence of religion to people. To make it easy for people to understand it, he spoke to them in Ardha Magadhi, a people's language. The religion that he expounded laid stress on good conduct. The essence of his teaching for good conduct is contained in the five great vows, Panch Mahavratas, and the three jewels, Triratna. The assembly held by the Tirthankar to preach the people was known as Samavasran in Ardha Magadhi. Samavasran was based on equality. People of all Varnas had entry to it. वर्धमान को महावीर कहा जाता है क्योंकि वो असफलताओं या बाधाओं के बावजूद सामना करना जानते थे। सभी भावनाओं को जीतने का साहस था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने लोगों को धर्म का एसेंस यानी सार, उसका इम्पोर्टेंस समझाने के लिए लगभग 30 वर्षों तक प्रचार किया। लोगों को इसे समझना आसान बनाने के लिए उन्होंने लोगों की भाषा अर्धमगधी में उनसे बात की। जिस धर्म को उन्होंने उजागर किया उसने अच्छे आचरण या बर्ताव पर जोर दिया। अच्छे आचरण के लिए उनकी शिक्षाओं को सार, महत्व 5 महान प्रतिज्ञा, पंच महाव्रतों और 3 ज्वेल्स त्रिरत्न में शामिल है। तीर्थंकर द्वारा लोगों को उपदेश देने के लिए आयोजित सभा को अर्धमगधी में समवस्त्रन के नाम से जाना जाता था। समवस्त्रन समानता पर आधारित था। सभी वर्णों के लोगों को इसमें प्रवेश था। द पंच महाव्रतास, द 5 ग्रेट वाउस, these are 5 rules to be followed strictly. इन 5 नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। फर्स्ट, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। किसी भी जीवित प्राणी को किसी के व्यवहार के माध्यम से घायल या नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। सेकेंड, सत्य, ट्रूथ। एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। प्रत्येक वाणी और कर्म सत्य होना चाहिए। थर्ड, अस्त्य, नॉन स्टीलिंग। अस्त्य मीन्स थेफ्ट। टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। अस्त्य मीन्स नॉन स्टीलिंग एनीथिंग। असत्य, चोरी ना करना। अस्त्य का अर्थ है चोरी। सहमति के बिना दूसरों की चीजों को लेना चोरी है। अस्त्य का अर्थ है चोरी ना करना। अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। Man tends to accumulate property due to greed. Aparigraha means not hoarding or accumulating anything in this way. अपरिग्रह कोई लगाव ना होना। मनुष्य की लालच की वजह से संपत्ति जमा होती है। अपरिग्रह का अर्थ है इस तरह से कुछ भी जमा न करना। फिफ्थ, ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द वॉज। ब्रह्मचर्य शुद्धता, इसका अर्थ है शारीरिक सुख छोड़ना और प्रतिज्ञा का पालन करना। त्रिरत्ना, द 3 ज्वेल्स। द 3 ज्वेल्स आर द 3 प्रिंसिपल। 3 सिद्धांत है। साम्यक दर्शन, राइट फेथ। साम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। साम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। साम्यक मीन्स बैलेंस यानी संतुलित।
First, Samyak Darshan. To understand the truth in the preaching of Tirthankar and to have faith in it. तीर्थंकर के उपदेश में सच्चाई को समझना और उस पर विश्वास करना है। साम्यक ज्ञान, स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ द तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। तीर्थंकर के उपदेश और दर्शन का नियमित रूप से अध्ययन करना और इसके गहरे अर्थ सीखना। साम्यक चरित्र, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वोज, 5 महान प्रतिज्ञाओं को सख्ती से पालन करना। Essence of his teaching. Among the teachings of Mahavir, Anekant Tauda is considered to be very important in the quest for truth. It means pluralism or multiple viewpoints. In our quest for truth, if we focus on only one or two aspects or viewpoints and draw conclusion, the whole truth is not known. Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects of an issue. If people follow this, they develop tolerance towards the opinion of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinions. उनकी शिक्षाओं का सार। महावीर अनेकांत तावड़ा की शिक्षाओं में सत्य की खोज में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ है बहुवाद या एकाधिक दृष्टिकोण। सत्य की हमारी खोज में यदि हम केवल एक या दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं तो पूरी सच्चाई का पता नहीं चलता। इसलिए किसी मुद्दे के सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि लोग इसका पालन करते हैं तो वे समाज में अन्य लोगों की राय के प्रति सहनशीलता विकसित करते हैं और अपने स्वयं के विचारों के प्रति जिद्दी होने का रवैया छोड़ देते हैं। वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct. In the Vedic tradition, the doors of knowledge had slowly been closed to women, but Vardhaman Mahavir gave the right of sannyas, the right to renounce the world, to women too. His teaching were, love all living things, have mercy and compassion, and live and let live. वर्धमान महावीर ने लोगों को सिखाया कि मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं बल्कि उसके उत्कृष्ट आचरण बर्ताव पर निर्भर करती है। वैदिक परंपरा में ज्ञान के द्वार धीरे धीरे महिलाओं के लिए बंद हो गए थे, लेकिन वर्धमान महावीर ने महिलाओं को संन्यास का अधिकार, संसार त्यागने का अधिकार भी दिया। उनकी शिक्षाएं थी, सभी जीवित चीजों से प्यार करो, दया करो और करुणा करो, यानी रहम करो और हमदर्दी रखे और जियो और जीने दो। Buddhism spread in India and in many countries outside India. Gautama Buddha was the founder of Buddhism. बौद्ध धर्म भारत में और भारत के बाहर कई देशों में फैल गया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। Gautama Buddha 563 BCE to 483 BCE. Gautama Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Shuddhodana and mother's Maya Devi. His birth name was Siddharth. He had attained knowledge of human life in its entirety. That is why he came to be known as the Buddha. He wanted to know why there is sorrow and suffering in human life. He left his home and all comforts in pursuit of the answer to this question. On Vaishakha Purnima, he was sitting in deep meditation under a peepal tree at Uruvela near the city of Gaya in Bihar. That is when he attained Bodhi, enlightenment or the highest knowledge. The tree is now known as the Bodhi tree, Bodhi Vriksha, and the place Uruvela is known as Bodh Gaya. गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मानव जीवन का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी कारण उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वह जानना चाहते थे कि मानव जीवन में दुख और कष्ट क्यों है। उन्होंने इस सवाल के जवाब की खोज में अपना घर और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। वैशाख पूर्णिमा पर वह बिहार के गया शहर के पास उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तब उन्होंने बोधि प्राप्त की, उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया। उस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है और उरुवेला स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है।
He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teaching in the first sermon are termed Dhamma. He set in motion the wheel of Dhamma in this sermon. Therefore, this event is called Dhamma Chakrapavatan in Pali and Dharma Chakraparvatan in Sanskrit. Later, he traveled on foot, Charika, for nearly 45 years to preach Dhamma. He preached in the people's language Pali. In Buddhism, the concept of taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha is important. It is known as Trisharan. उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। पहले उपदेश में उनकी शिक्षाओं को धम्मा कहा गया है। उन्होंने इस उपदेश में धम्मा के चक्र को गतिमान किया, इसलिए इस घटना को पाली में धम्मा चक्कपवतन और संस्कृत में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बाद में उन्होंने लगभग 45 वर्षों तक धम्मा का प्रचार करने के लिए पैदल चारिका यात्रा की। उन्होंने लोगों की भाषा पाली में प्रचार किया। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्मा और संगा में शरण लेने की अवधारण महत्वपूर्ण है। इसे त्रिशरण के नाम से जाना जाता है। The essence of the Dhamma he expounded is as follows. Arya Satyas, noble truth. There are four truths at the root of all human affairs. They are called noble truth और आर्य सत्यास। उन्होंने जिस धम्मा का विस्तार किया है वह इस प्रकार है। आर्य सत्य, महान सत्य। सभी मानवीय मामलों के मूल में चार सत्य है। उन्हें नोबल ट्रूथ यानी महान सत्य या आर्य सत्य कहा जाता है। फर्स्ट, दुख, सफरिंग। देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में दुख है। द कॉज ऑफ दुखा, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का कारण है। दुख का निवारण, दुख को समाप्त करना संभव है। प्रतिपदा, प्रतिपदा मीन्स द वे। दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। दिस इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट। इट इज नोन एज द अष्टांगा और एट फोल्ड पाथ। प्रतिपदा का अर्थ है रास्ता। इस तरह दुख का अंत होता है। यह अच्छे आचरण का तरीका है। इसे अष्टांगा या एट फोल्ड पाथ के रूप में जाना जाता है। पंचशील। Gautama Buddha asked people to follow 5 rules. The rules are called Panchashil. First, stay away from killing animals. Second, stay away from stealing. Third, stay away from unethical conduct. Fourth, stay away from telling lies. Fifth, stay away from intoxicants. पंचशील। गौतम बुद्ध ने लोगों को 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा। नियमों को पंचशील कहा जाता है। पहला, जानवरों को मारने से दूर रहे। दूसरा, चोरी से दूर रहे। तीसरा, अनैतिक आचरण से दूर रहे। चौथा, झूठ बोलने से दूर रहे। पांचवा, नशीले पदार्थ से दूर रहे। बुद्ध संघा। ही क्रिएटेड अ संघा ऑफ भिक्खूज टू प्रीच हिज रिलीजन। फॉलोवर्स हु गेव अप देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड एंटर्ड द संघा वेर कॉल्ड भिक्खूज। दे टू ट्रेवल्ड on foot like the Buddha to preach Dhamma to the people. There was a separate Sangha of women. They are called Bhikkhunis. People of all varnas and castes could embrace Buddhism. बुद्ध संघ। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्खु का एक संघ बनाया। जिन फॉलोवर्स यानी अनुयायियों को ने अपने घरेलू जीवन को छोड़ दिया और संघा में प्रवेश किया उन्हें भिक्खु कहा जाता था। वे भी बुद्ध की तरह पैदल चलकर लोगों को धम्मा का उपदेश देते थे। महिलाओं का एक अलग संघ था, उन्हें भिक्खुनी कहा जाता था। सभी वर्णों और जातियों के लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते थे। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। Gautama Buddha announced the freedom of human intelligence. He refused the discrimination based on things like varna. No one is greater or smaller by birth. Greatness depends on one's behavior or conduct. One of his famous quotes is that even the little quail can chirp freely in her nest. This shows his thinking on the values of freedom and equality. He preached that, like man, woman too had the right to their own upliftment. He opposed the rituals of yajna. His teaching of wisdom, prajna, moral virtue, shil, and other values are aimed at the welfare of man. Compassion, karuna, for all living beings was an extraordinary feature of his personality. The tolerance preached by Gautama Buddha is a guiding principle not only for the Indian society
but for all mankind even today. उनकी शिक्षाओं का सार यानी महत्व। गौतम बुद्ध ने मानव बुद्धि की स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने वर्ण जैसी चीज़ों के आधार पर भेदभाव से इनकार कर दिया। जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। महानता किसी के व्यवहार या आचरण यानी बर्ताव पर निर्भर करती है। उनके प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक यह है कि छोटी बटेर भी अपने घोंसले में स्वतंत्र रूप से चहक सकती है। यह स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर उनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने उपदेश दिया था कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी अपने अपलिफ्टमेंट का तरक्की का अधिकार था। उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठानों का विरोध किया। उनकी शिक्षा बुद्धिमत्ता पर प्रार्थना, नैतिक गुण, शील और अन्य मूल्यों का उद्देश्य मनुष्य के कल्याण के लिए है। सभी जीवों के लिए दया और करुणा उनके व्यक्तित्व की एक असाधारण विशेषता थी। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया सहनशीलता न केवल भारतीय समाज बल्कि आज भी सभी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। लोकायत। The ancient trend of thought known as Lokayat or Charvak is also important. It emphasized independent thought and rejected the authority of the Vedas. In the ancient period, new religious trends and thought went on emerging in India. Later on, religions like Judaism, Christianity, Islam, and Zoroastrianism also took root in the Indian society. लोकायत या चार्वक के रूप में विचार की प्राचीन प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण है। यहाँ स्वतंत्र विचार पर जोर दिया और वेदों के अधिकार को खारिज कर दिया। प्राचीन काल में नए धार्मिक रुझान और विचार भारत में उभर रहे थे। बाद में जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई, इस्लाम और ज़ोरेस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म ने भी भारतीय समाज में जड़ जमा ली। जुडाइज्म। People belonging to the Jewish religion may have arrived in Kochi, in Kerala, around the 1st to 3rd century of the Christian era. They believe that there is only one God. Judaism emphasizes justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech, and self-respect. Their prayer house is known as synagogue. यहूदी धर्म, जुडाइज्म। ईसाई धर्म से संबंधित लोग ईसाई युग की पहली से तीसरी शताब्दी के आसपास केरल के कोची पहुंचे होंगे। उनका मानना है कि केवल एक भगवान है। यहूदी धर्म न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान, नैतिक भाषण और आत्मसम्मान पर जोर देता है। उनके प्रार्थना घर को एक आराधनालय के रूप में जाना जाता है जिसे सिनेगॉग कहते हैं। Christianity. Christianity is a religion founded by Jesus Christ. It has spread all over the world. Saint Thomas, one of the 12 disciples of Christ, came to Kerala in the 1st century of the Christian era. He established a church at Pallayur in Trichur district in 52 CE. According to the teaching of Christianity, there is only one God. He is the loving Father of all and is omnipotent. It is believed that Jesus Christ is the Son of God who came to the earth for the salvation of mankind. ईसाई धर्म यीशु मसीह द्वारा स्थापित एक धर्म है। यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस पहली शताब्दी में ईसाई युग में केरल आए थे। उन्होंने 52 सीई कॉमन एरा में त्रिचूर जिले के पल्लयूर में एक चर्च की स्थापना की। मसीहत की शिक्षा के अनुसार केवल एक ही ईश्वर है। वह सभी को प्यार करने वाला पिता है और सर्वशक्तिमान है। यह माना जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है जो मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए थे। According to the teaching of Christianity, we are all brother and sister. We should love everyone, including our enemies. We should forgive those who err or go wrong. The Bible is the holy book of Christianity and their prayer house is known as a church. ईसाई धर्म की शिक्षाओं के अनुसार हम सभी भाई बहन हैं। हमें अपने दुश्मनों सहित सभी से प्यार करना चाहिए। हमें उन लोगों को माफ करना चाहिए जो गलत करते हैं या गलत होते हैं। बाइबल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है और उनके प्रार्थना घर को एक चर्च के रूप में जाना जाता है। इस्लाम इज a monotheistic religion. There is only one Allah and Muhammad is his prophet.
The message of God is revealed through him in the holy book of Quran Sharif. The word Islam means peace. It also means surrender to Allah. The teaching of Islam is that Allah is eternal, absolute, all powerful, and merciful. The purpose of human existence is to worship Allah. The Quran Sharif provides guidance on how man should behave in life. इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है। केवल एक अल्लाह है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। परमेश्वर का संदेश उसके द्वारा कुरान शरीफ की पवित्र पुस्तक में प्रकट किया गया है। इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति। इसका मतलब अल्लाह के सामने समर्पण करना भी है। इस्लाम की शिक्षा यह है कि अल्लाह शाश्वत, निरपेक्ष, सभी से ज़्यादा शक्तिशाली और दयालु है। मानव अस्तित्व का उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना है। कुरान शरीफ यह बताता है कि मनुष्य को जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। Since ancient times, there have been trade relations between India and Arabia. Arab traders used to visit the ports on the coast on Kerala. Islam spread in Arabia in the 7th century CE. Islam arrived in India in the same century through the Arab traders. The prayer house of Islam is known as a mosque or masjid. प्राचीन काल से भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध रहे हैं। अरब के व्यापारी केरल के तट पर बंदरगाहों का दौरा करते थे। 7वीं शताब्दी सीई में अरब में इस्लाम फैल गया। अरब व्यापारी के माध्यम से इस्लाम उसी शताब्दी में भारत में आया। इस्लाम के प्रार्थना घर को मस्जिद के रूप में जाना जाता है। Zoroastrianism. Since ancient time, the Zoroastrian people and Vedic people have shared ties. The sacred text of the Parsi or Zoroastrian people is the Avesta. The language of the Rigveda and Avesta is similar. The Parsis came to India from the Pars or Fars province of Iran. Therefore, they are known as Parsis. It is mostly believed that the first came to Gujarat in the 8th century CE. Zarathustra or Zoroaster was the founder of their religion. Ahur Mazda is the name of their god. The elements of fire and water are very important in their religion. प्राचीन काल से जोरोस्ट्रियन लोगों और वैदिक लोगों ने संबंधों को साझा किया है। पारसी लोगों का पवित्र पाठ अवेस्ता है। ऋग्वेद और अवेस्ता की भाषा समान है। पारसी ईरान के पारस या फारस प्रांत से भारत आए थे, इसलिए उन्हें पारसी के रूप में जाना जाता है। यह ज्यादातर माना जाता है कि वे पहली बार गुजरात में 8वीं शताब्दी में आए थे। जरतुस्त्रा और जोरोस्टर उनके धर्म के संस्थापक थे। अहुर मजदा उनके भगवान का नाम है। आग और पानी के तत्व उनके धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। The sacred fire burns in the temples, which are known as agyaris. At the core of Parsi thinking are three main principles of conduct, namely good thought, good words and good deeds. मंदिरों में पवित्र अग्नि जलती है, जिसे अग्यारिस के नाम से जाना जाता है। पारसी सोच के मूल में आचरण के 3 मुख्य सिद्धांत है, अर्थात अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स और स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। द प्रिंसिपल ऑफ डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। जैन धर्म में डैश का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ गौतम बुद्धा पर्सनैलिटी इन हिज डैश फॉर ऑल लिविंग बींग। गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व की एक असाधारण विशेषता सभी जीवित प्राणियों के लिए उनका डैश है। आंसर है कंपैशन यानी दया। आंसर इन शॉर्ट, व्हाट वेर द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के उपदेश क्या थे? आंसर, वर्धमान महावीर प्रीच पंच महाव्रतास कंसिस्टिंग ऑफ अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। He emphasized the excellence of one character. He preached love of all living beings and asked people to practice mercy and compassion. He preached the idea of live and let live. वर्धमान महावीर ने पंच महाव्रतों का प्रचार किया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल थे। उन्होंने एक चरित्र की उत्कृष्टता पर जोर दिया। उसने सभी जीवों के प्रेम का प्रचार किया और लोगों से दया और करुणा का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने जियो और जीने दो के विचार का प्रचार किया। विच फेमस कोट ऑफ गौतम बुद्धा हैव यू रीड हियर? व्हाट वैल्यूज डज इट अपहोल्ड?
गौतम बुद्ध का कौन सा प्रसिद्ध उदाहरण आपने यहाँ पढ़ा है? यह किन मूल्यों को बनाए रखता है? आंसर: Gautam Buddha had said, "Even the little quail can chirp freely in her nest." Thereby he propounded the values of freedom and equality. गौतम बुद्ध ने कहा था, छोटी बटेर भी अपने घोंसले में स्वतंत्र रूप से चहक सकती है, जिससे उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को प्रतिपादित किया। What virtues are emphasized in Judaism? यहूदी धर्म में किन गुणों पर जोर दिया गया है? आंसर: Judaism emphasizes the virtues of justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech and self-respect. यहूदी धर्म में न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान, नैतिक भाषण और आत्मसम्मान के गुणों पर जोर दिया है। What are the teaching of Christianity? ईसाई धर्म की शिक्षाएं क्या है? आंसर: Christianity preaches that there is only one Almighty God and He is loving Father of all. Jesus Christ is the Son of the God and He descended on the earth for salvation of humanity. We all are brother and sister and we should love even our enemies. We should forgive those who err or go wrong. ईसाई धर्म का प्रचार है कि केवल एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और वो सभी का पिता है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और वे मानवता के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम सब भाई बहन हैं और हमें अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। हमें गलत या गलत करने वालों को क्षमा करना चाहिए। What are the teaching of Islam? इस्लाम की शिक्षाएं क्या है? आंसर: The teaching of Islam is surrender to Allah. Allah is eternal, absolute, all powerful and merciful. The purpose of human existence is the worship of Allah. Quran Sharif provides guidance on how man should behave in life. इस्लाम की शिक्षा अल्लाह के सामने समर्पण है। अल्लाह शाश्वत, निरपेक्ष, सभी शक्तिशाली और दयालु है। मानव अस्तित्व का उद्देश्य अल्लाह की इबादत है। कुरान शरीफ ये बताता है कि मनुष्य को जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। What is at the core of Parsi thinking? पारसी सोच के मूल में क्या है? Answer: The elements of fire and water are very important. At the core of this religion are the three main principles of good conduct, namely good thoughts, good words and good deeds. आग और पानी के तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस धर्म के मूल में अच्छे आचरण के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, अर्थात अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। राइट नोट्स ऑन आर्य सत्यास नोबल ट्रूथ यानी महान सत्य। Gautam Buddha provided answers to questions such as what is the nature of human life and why does man have to undergo sufferings in the form of four noble truths, that is Arya Satyas. First, Dukha, suffering. Human life is full of suffering. Second, Trisha, desire. The cause of suffering is desire or craving. Third, Dukkha Nivaran. It is possible to end sufferings. Fourth, Pratipat, the way leading to the end of suffering. गौतम बुद्ध ने मानव जीवन की प्रकृति क्या है जैसे सवालों के जवाब दिए और मनुष्य को कष्टों से क्यों गुजरना पड़ता है ये चार सत्य के रूप में अर्थात आर्य सत्य में बताए हैं। पहला, दुख, मानव जीवन दुखों से भरा है। दूसरा, तृषा यानी इच्छा, दुख का कारण इच्छा या लालसा है। तीसरा, दुख निवारण, दुख को समाप्त करना संभव है। चौथा, प्रतिपद, दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग। Panchashil. Gautam Buddha preached the following 5 rules of conduct to be observed along with Ashtangik. First, Ahimsa, non-violence. No living being should be hurt. Second, Satya, truth. One should not tell lies. Third, Astiya. One should not steal. Fourth, Indriya Sanyam. One should win control over bodily desires. And fifth, one should not take intoxicants. गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक के साथ देखे जाने वाले आचरण के निम्नलिखित 5 नियमों का प्रचार किया। पहला, अहिंसा, किसी भी जीवित व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा, सत्य, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। थर्ड, अस्त्य, किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, इंद्रिय संयम, किसी को शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण जीतना चाहिए। पांचवा, व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए।
हमें इस क्वेश्चन में 5 ग्रेट वॉव्स और 3 ज्वेल्स इकट्ठा दिए गए हैं, तो हमें इसे सेग्रीगेट करना है और एक टेबल की एक तरफ 5 ग्रेट वॉव्स लिखने हैं और दूसरी तरफ 3 ज्वेल्स लिखने हैं। तो 5 ग्रेट वॉव्स है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य, और 3 ज्वेल्स है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। Why was the name जिना given to वर्धमान महावीर? वर्धमान महावीर को जीना नाम क्यों दिया गया था? आंसर, जीना is one who conquers all physical bodily desires. In pursued knowledge, वर्धमान महावीर undertook rigorous tapa, suffered bodily pain without flinching, gave up all comforts and conquered all bodily desires. Therefore, वर्धमान महावीर came to be known as जीना। जीना वह है जो सभी भौतिक शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्धमान महावीर ने कठोर तप किया, बिना दर्द के शारीरिक पीड़ा का सामना किया, सभी सुखों को छोड़ दिया और सभी शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। इसलिए वर्धमान महावीर को जीना के रूप में जाना जाने लगा। Why did गौतम बुद्धा came to be called the Buddha? गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा जाने लगा? आंसर, Prince Siddharth Gautam had left home, wife and son to find answer for all human suffering. After rigorous tapa, he acquired bodhi, that is enlightenment or divine knowledge. Therefore, Gautama Buddha came to be known as the Buddha. राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सभी मानवीय कष्टों का उत्तर खोजने के लिए घर, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया था। कठोर तप के बाद उन्होंने बोधि अर्थात आत्मज्ञान या दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।